right, so let's start with this. Milk of magnesia. Milk of magnesia, in case you remember, this is basically hydroxide of magnesium dissolved in water, and it's used to treat stomach ache and all that, acidity. So, it is a liquid medicine used to treat indigestion. Milk of magnesia contains magnesium hydroxide. All right. A student does a series of titrations. क्या होती थी titration? Titration है जब हम किसी भी चीज को we take one measured volume and one volume that we do not know and we want to measure कि वो कितना होना चाहिए. So एक हमें पता होती है, एक हमें नहीं पता होती, और उसको हम रिएक्शन करवाते हैं. एसिड बेस्ड टाइट्रेशन इज रियली सिंपल, रीडॉक्स टाइट्रेशन इज रियली सिंपल. वो हम इसी मेथड से करते हैं. अगर कलरलेस सॉल्यूशंस हो तो हम उसमें इंडिकेटर्स यूज करते हैं. और अल्टीमेट गोल हमारा क्या होता है कि हमें एंड पर दो वैल्यूज ऐसी चाहिए विच आर रियली क्लोज टू ईच अदर. Alright, so diagram of some of the apparatus used by the students are shown. So ये apparatus यहाँ पे हमारे सामने है. So ये क्या है? They are basically, this one is conical flask. You can see that this one in particular does not have any way for us to measure it. यहाँ पे कोई measurement का उसने कोई graduation नहीं दी. ये जो lines होती हैं ना, इनको graduation कहते हैं. So this one is not graduated, which basically means that we cannot use it to measure the volume. We can just use it to mix things, or we can just use it to store things. ठीक है. So conical flask is usually used to mix solutions क्योंकि इसकी neck काफी narrow होती है. तो आप टाइट्रेशन में इसमें एसिड डाल लेते हैं, ऊपर से बेस डाल लेते हैं, ये इस तरह करके रिएक्शन करवा लेते हैं. ऑलराइट, बी इज अ पाइपेट या पिपेट जिसको कहते हैं. एंड द मेन advantage that pipette offers is that it is basically going to give you just one of the exact amount because it has just one graduation. So that means if it is a 10 centimeter cube or 25 cm cube or 50 cm cube pipette, it will be really, really accurate. And you can just measure it to 50 exact. And this one, जिसमें tap होता है ना, this is called burette. And burette, this one is graduated, which basically means that you can measure volume. The best or the most precise in these three is pipette, and then we have burette. And conical flask, this one cannot be used to measure anything. So आगे उसने कहा कि name three pieces of apparatus. तो हमारे सामने टाइट्रेशन कैसे करते हैं? पिपेट यूज करते हैं, वॉल्यूम ट्रांसफर करते हैं conical flask में. After that, you transfer the amount that you have from burette into the conical flask, and that's how it works. The student puts 5 cm cube of milk of magnesia into apparatus A, which was conical flask. So उसने 5 cm cube उसमें ऐड कर दिया और उसमें distilled water ऐड कर दिया. हमें नहीं पता उसने कितना ऐड किया. Then adds a few drops of suitable indicators to the mixture. So indicator कुछ भी हो सकता है. This is a base, so it depends on what the other thing is. So वो आगे उसने बताया कि उसने इंडिकेटर ऐड कर दिया ए में. तो अब कॉनिकल फ्लास्क में क्या है? यू हैव द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया व्हिच इज बेस, you have distilled water which basically made it more dilute, and you have indicator in it. Okay, fills apparatus C, which was the burette, with 0.6 mole per dm cube HCl. So we have dilute HCl और उसकी molarity उसने हमें concentration उसकी बता दी है. So you have HCl in the burette and milk of magnesia 5 cm cube, a small amount, in the conical flask dissolved in some water. All right, titrates the contents of the apparatus A with this much until the indicator changes color. So हो क्या रहा है? Basically the acid from burette goes into the conical flask and reacts. अब जो react कर जाएगा तो magnesium hydroxide will be used up. So उस पे आपके इंडिकेटर का कलर चेंज नहीं होगा. क्यों? एसिड आकर उसको ओवरवेलम नहीं किया उसने. एसिड आया, रिएक्ट किया, खत्म. तो जो उसका कलर पहले था वो ही रहेगा until it gets to a point where you add acid and now there is no milk of magnesia left to react with. So now the color will change because now the indicator is no longer showing the color of milk of magnesia. It's going to show the color in acid because you have acid in excess. All the milk of magnesia has reacted और वो value हम record कर लेते हैं. ठीक है. तो यूजुअली वी डू इट 3 टाइम्स एटलीस्ट, और उसमें हमारा गोल क्या होता है कि हमें 2 टाइम्स वैल्यूज बहुत बहुत क्लोज चाहिए. आइडियली वी वांट देम टू बी द सेम, लेकिन अगर सेम नहीं आती बिकॉज ऑब्वियसली एक्सपेरिमेंटेशन है, देयर इज सम वेरिएशन. टैप कभी ज्यादा खुल गया, कभी कॉनिकल फ्लास्क में अमाउंट कम डाल दी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं. ठीक है. बट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट हैपेंस, आपका गोल ये है कि आपको 3 में से 2 वैल्यूज क्लोज चाहिए.
अगर दूर दूर वैल्यूज होंगी तो आप चौथी दफा करेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि उसने 3 दफा किया, रिकॉर्ड कर लिया, आ गया जी, ये लें जी, वैल्यूज आ गई। So initial reading, basically burette reading tells me how much of the solution has been used up. ठीक है, the solution that has gone out of it, क्योंकि टैप नीचे होता है और जीरो ऊपर होता है, that means when it is completely filled the value is zero, that means no liquid has been used, no solution has reacted yet. All right, so let's use these values. So वो कहता है final reading, this is 23.6. So I'll just write it like that. Notice that every value is to one decimal place. So when you write it, even if you get zero, which you don't have in this case, but even if you did, you will write it to one decimal place. Okay. The initial reading it says is 0.3. So we'll write 0.3 here. Now we have to fill it up. So 24.1 minus 0.0 is 24.1. 23.6 minus 0.3 is 23.3. एंड 24.4 में से क्या यूज करें कि वो 23.6 रह जाए. So basically you have to just subtract them. So this one I think is going to be the same, 0.8. Now we have to pick the two values that are really close to each other. तो कौन सी दो वैल्यूज हम पिक करेंगे जो कि बेस्ट हैं? The ones that are really close to each other. 24.1 और 23.3. वो तो बहुत दूर है. They are the जी, furthest away. We are looking for best सर iteration. 23.8 और 23.6. Exactly, the ones that are really close together. So ये दो वाली हम पिक कर लेंगे. तो बार बार रिएक्शन करने का मकसद ये होता है टाइट्रेशन करने का, that you get values that are close to each other so you can get a good estimate. Alright, so we have gotten two values और आगे हम उन्हीं को use करेंगे. The rest of it we are going to discard them. Alright, using these best titration results, calculate the average volume. So average volume क्या होगी? You take these two and you take their average. So it's halfway there. So 23.7. That's the centimeter cube. So now basically this value is telling me कि अच्छा आपके पास 5 cm cube मिल्को मैग्नीशिया था, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको 0.6 मोल पर डीएम क्यूब HCl वाली 23.7 cm क्यूब चाहिए. This is the volume of HCl और उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 0.6 मोल पर डीएम क्यूब. तो हमें पता चल गया कि कितना एसिड चाहिए. Alright, suggest why the volume of distilled water added to apparatus does not affect the results. क्योंकि distilled water ने उसको react करने में change नहीं करने देना. Acid आएगा मिल्क मैग्नीशिया से react करेगा. What will it change? It will change the volume of solution. Volume of solution किस चीज को affect करती है? Concentration को. Concentration. But it does not affect the moles of milk magnesia that you had. Magnesium hydroxide in milk magnesia, the one that you have, उसकी मोल्स को फर्क नहीं पड़ेगा. कॉन्सेंट्रेशन डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है हमारे पास यहाँ पे, जब वो एसिड ने आके रिएक्ट करना ही है और हमने इंडिकेटर ऐड किया हुआ है कि जब तक पूरा रिएक्ट ना कर जाए तब तक रुकना नहीं है. So it does not change the moles of magnesium hydroxide, it only affects concentration. And that is why adding distilled water doesn't really matter. हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा वाटर ऐड कर दोगे, आपको swirl ज्यादा करना पड़ेगा, it might take a little longer for all the particles to collide, but other than that it doesn't affect as much. ठीक है? So we'll just write that. All right, a second student adds another series of titration using the same method. This student obtains an average volume 23.3. अब उस स्टूडेंट की 23.3 है, हमारी 23.7 थी. और अब कैलकुलेशंस में हम इस स्टूडेंट की वैल्यू यूज करेंगे. पहले से हमें क्या क्या वैल्यूज पता होनी चाहिए? हमें ये पता होना चाहिए हाउ मच ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाज यूज्ड. इट वाज 5, लेकिन वो मिल्को मैग्नीशिया था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था. हमें ये पता होना चाहिए कि HCl की कॉन्सेंट्रेशन क्या है. ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए. सो वी टेक दैट, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 0.6 मोल पर डीएम क्यूब HCl. HCl हमें मिल गया, उसकी कॉन्सेंट्रेशन मिल गई, उसकी वॉल्यूम भी मिल गई. And used by this second student, so we have the volume, we have the concentration, so number of moles is concentration times volume. So it's 23.3 times 0.6 divided by 1000, because 23.3 cm cube है, dm cube में करने के लिए divided by 1000 करना पड़ेगा. ठीक है? So does anybody have a calculator? What do we get? I'm getting 0.01398. Is that okay? Can you confirm? Sir 0.01392 आ रहा है.
So आपने 23.2 लिखा है, 23.7 हो. So it is 1392. I'll take that. Calculate number of moles of magnesium hydroxide present in this. अब देखें, उसकी volume magnesium hydroxide की 5 नहीं थी. It was the volume of the whole milk of magnesia thing that was 5. And you know, milk of magnesia has magnesium hydroxide in it. It is not magnesium hydroxide itself. उसमें कुछ और भी मिक्स हुई होती हैं चीजें. Which means कि 5 सेंटीमीटर क्यूब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वॉल्यूम नहीं है. हमें नंबर ऑफ मोल्स देखना पड़ेंगी कि उसमें कितनी वो थी. So for that we will use the equation. The equation tells me that 2 moles of HCl react with 1 mole of magnesium hydroxide. हमें रेशियो मिल गया है. So using that I can say that okay, 2 moles HCl reacts with one of that, so 0.01392 will react with x of it, and that means x equals to 0.01392 divided by 2. So whatever answer I get there, that is 0.00696. What is this telling me? कि वो जो 5 सेंटीमीटर क्यूब आपने मिलकर मैग्नीशियम लिया था ना, उसमें जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड थी वो सिर्फ इतनी थी, बाकी कुछ और था. मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाज जस्ट दिस. अब वो कहते हैं इसका मैथ निकाल के दें, तो हमें एमआर चाहिए. एमआर कैलकुलेट करते हैं. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला होता है Mg(OH2). क्यों? मैग्नीशियम पॉजिटिव 2 है, ग्रुप 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है. हाइड्रोक्साइड इज -1. व्हेन दे react together, they make a formula. The magnesium positive 2 and hydroxide -1, the ratio is 2 to 1. So that is why you get magnesium hydroxide with a 2 here. So that's what happens here. You have one magnesium, you have 2 oxygen, you have 2 hydrogen. So that is going to be 58 if I'm not wrong. So you have 0.000696 moles and you have the mass MR. So mass is moles times MR. अगर इसको रेशियो मेथड से करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं. आप कह सकते हो कि 1 मोल का मास 58 ग्राम्स होता है, तो 0.00696 मोल्स का x होगा, and that way you will also get the same answer. ठीक है? So that answer, the one that you get, is basically 0.404 grams. मैं उसको 3 decimal places तक लिख रहा हूँ, वैसे it is 40368. अब आगे वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जी कि डेंसिटी ऑफ मिल्क मैग्नीशिया इज दिस और कैलकुलेट मास ऑफ 5 cm3. ठीक है. अब 0.404 क्या निकला है? इट इज मास ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जस्ट दैट. कि उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कितना है? वो 0.404 है. बाकी जो है वो उसके अलावा है, वो कुछ और इम्प्योरिटीज हैं या कुछ और. Then this is paper 4 of summer 19. Okay, let's see. The density, अब ये totally unrelated है. They have broken the chain of thought that we had. Now it's totally unrelated. It's saying 5 centimeter cube उसकी volume है, density given है, mass निकाल के दो. तो mass निकाल लेते हैं. Density is 2.34 multiplied by 5 cm cube. Now why I'm not dividing by 1000 here? Because the unit of density is also in cm cube and the volume is also in cm cube. So I don't need to. जब unit consistent हो तो हमें कोई unit conversion की जरूरत ही नहीं है. So this will give me, I'll just calculate it. 5 times 2.34, 11.7 grams. Basically, this is telling me कि वो जो 5 cm cube मिल्क मैग्नीशिया हमने पानी में डिसॉल्व किया था कोलिकल फ्लास्क में फॉर द टाइट्रेशन, उसके अंदर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाज जस्ट 0.404, लेकिन ओवरऑल उसका मास 11.7 था. तो इसकी परसेंटेज बाय मास निकाल लेते हैं कि अच्छा देखें जी 0.404 out of 11.7 was magnesium hydroxide. Multiply by 100%, आंसर मिल जाएगा. So I'm getting 3.45%. So milk magnesia has very small amount of magnesium hydroxide. The rest is something else. E150A and E155 are both brown food colorings. Okay, they're both brown. Color same है दोनों का. Food coloring है, ठीक है, ये उनके codes हैं. Plan an investigation to find whether the brown food coloring in a soft drink is this or that. तो बेसिकली हमें कुछ ऐसा तरीका करना है कि हम दोनों कलर्स को चेक कर सकें उनके ओरिजिनल कलर के साथ. तो हमारे पास क्या है कि वी हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक एंड यस, Hassan, you are absolutely right.
this is going to be chromatography because that's the only method that we know of that allows us to compare colors. तो अब करेंगे कैसे? पहली बात है हमें वो soluble होने चाहिए, solvent select करना है. उसने कहा है कि they are both soluble in water, तो water तो हमारा solvent confirm हो गया. ठीक है. अब हमें pure वन E15A 155 दोनों प्योर भी मिले हमें और हमें सॉफ्ट ड्रिंक में से ब्राउन फूड कलरिंग भी उसने एक्सट्रैक्ट करके दे दी है. तो हमें ये तीन चीजें मिल गई और एपरेटस सारा लैब वाला भी मिल गया. अब करेंगे क्या? तो फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी क्लियर ऑन कि मेथड कौन सा फॉलो करना है. आप डिस्टिलेशन से इसको नहीं कर सकते, आप इसको क्रोमेटोग्राफी से ही करेंगे. एंड द बिगेस्ट हिंट वी हैव हियर इज द कलर. ये कलर वाली चीज है, इसको हम वहां से चेक कर सकते हैं. सेकेंड थिंग दैट वी विल नीड टू डू is basically understand the chromatography procedure. Chromatography में क्या होता है? एक चीज होती है जो कि मूव नहीं करती, जैसे कि पेपर है आपका, ठीक है, और एक चीज है जो मूव करती है. वो सॉल्वेंट हो गया, वाटर हो गया, वो यहाँ वाटर हमने कर दिया. लेकिन हमारे स्पॉट्स इस सॉल्वेंट से ऊपर होने चाहिए. तो पेंसिल से लाइन लगाएंगे और 3 स्पॉट लगा देंगे. अब ये 3 स्पॉट किस किस के हैं? एक हमारे पास है 155A, एक है 150A है, और ये हमारे पास ब्राउन कलर है. ये हमने किया क्यों है? हमें प्योर वाला क्यों चाहिए? ताकि हम कंपेयर कर सकें. अब प्योर चीज जो है वो हमें एक स्पॉट देगी, इम्प्योर चीज हमें मल्टीपल स्पॉट्स देगी. तो आई एम जस्ट मेकिंग इट अप. एग्जाम में आपको थोड़ी बताया होगा उसने कि कौन से स्पॉट कहां पे आने. तो आप बस अपनी मर्जी से स्पॉट लगा दो. आप कह दो जी 150A यहाँ पे आएगी, 155A यहाँ पे आएगी. जस्ट मेक श्योर कि अगर आप ये स्पॉट्स लगा रहे हो देन यू शुड नो कि आपके पास ये जो स्पॉट्स आ रहे हैं वो सिंगल स्पॉट्स होने चाहिए. वैसे स्पॉट लगाने की ऐसा जरूरत भी नहीं है. अगर आप इसको ऐसे ब्लैंक भी छोड़ दें और साथ में एक्सप्लेन कर दें, दैट्स परफेक्टली फाइन. बट व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इसके, लेट सपोज इसका एक स्पॉट यहाँ पे आ जाता है, इसका एक स्पॉट यहाँ पे आ जाता है, इसके ऐसे स्पॉट्स आ जाते हैं. तो 3 स्पॉट्स और मल्टीपल स्पॉट्स फ्रॉम वन थिंग टेल मी दैट इट इज इम्प्योर. दैट्स द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इट्स टेलिंग मी कि आपके पास ये किसके साथ मैच कर रही है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. इफ इट इज ऑन द सेम लेवल तो वो वही चीज है. अब यहाँ पे उसने हमें ये थोड़ी कहा कि ये इम्प्योर है, तो हम अपनी तरफ से नहीं कह सकते कि वो इम्प्योर है. हमें बस उसने कहा कि 150A 155 और ब्राउन फूड कलरिंग सब कुछ दे दिया भाई, ठीक है, मान लिया. आपको नहीं पता कि वो कहाँ पे स्पॉट आएंगे, लेकिन आपको प्रिंसिपल आता है. डायग्राम इतनी बना दी, काफी है. अब आप इसको एक्सप्लेन करें. आप बताएं कि जी प्रिकॉशंस क्या होनी चाहिए. आप बताएं कि जी पानी एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, स्पॉट्स हम पेंसिल के ऊपर लगा रहे हैं. द बेस लाइन दैट वी हैव दैट इज मेड ऑफ पेंसिल. तो ये आप बता दें कि बेस लाइन विद पेंसिल होनी चाहिए. उसकी ऑब्वियसली रीजन है, लेकिन वो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है, हमें हमें बताने की जरूरत नहीं है. फिर हमें पता है कि जब ये स्पॉट्स बन जाएंगे, वाटर विल ट्रेवल टू अ सर्टेन लेवल, आरएफ वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी. तो हम कह देंगे कि आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला क्या है. आपने आंसर में वो भी मेंशन कर देना है कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्पॉट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन. ये बहुत जरूरी है. सो यू कैन इंक्लूड दैट. सो ओवरऑल इट्स अ 5-6 मार्क क्वेश्चन. ठीक है. तो अब इसमें हम क्या बताएंगे? पहली बात हमने बता दी कि जी क्रोमेटोग्राफी है, प्योर चीज के सैंपल तो जरूर लगाने. उसके बाद आप कहोगे कि भाई उसको पकड़ के सॉल्वेंट में डाल दो, लेकिन बेसलाइन पेंसिल से बनाना और सॉल्वेंट के ऊपर रखना. फिर आरएफ वैल्यू का फॉर्मूला बता दो कि वी विल measure the or calculate the RF value using this formula, and the things with the same RF value are the same. वो प्रिंसिपल आप बता दें, you're done with all 6 marks. ठीक है. दोबारा से सुन लें. You have to tell कि मेथड क्या है. वो क्रोमेटोग्राफी नजर आ रहा है, आपको दोबारा लिखने की जैसे जरूरत नहीं है. Then you'll say okay, we'll use water as a solvent or dip the paper in that, keeping the baseline above the water level. Spots on the baseline कर दिए, पेंसिल बन, या आप ऐसे लिख देंगे बेस लाइन विद पेंसिल, या नीचे आंसर में लिख देंगे ड्रॉ द बेस लाइन विद पेंसिल. फिर उसको बताएं कि भाई दे विल ऑब्वियसली ट्रेवल एंड ऑल दैट. उसकी रीजन देने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रेवल क्यों करते हैं, कैपिलरी एक्शन होता है या वो डिसॉल्व होते हैं, वो बताने की जरूरत ही नहीं. वी आर टॉकिंग अबाउट इसेंशियल लैब और प्रैक्टिकल डिटेल्स.
So then we will say, okay, measure the RF value. Once it's done, the thing that has the same RF value as if the brown coloring has the same RF value as any of the two other dyes, we know that that is the color that you have. अच्छा, इसमें एक मिसकंसेप्शन है कि जी अगर आपने डायग्राम नहीं बनाई तो आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे, या आपने डायग्राम पे कुछ लिख भी दिया है तो उसको बाद में लिखना एक्सप्लेन करना जरूरी है। नहीं जरूरी, रेपिटेशन के कोई मार्क्स नहीं होते। आपने एक चीज डायग्राम में लिख दी है तो बाद में आंसर में लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, समटाइम्स ड्रॉइंग अ डायग्राम इज ऑप्शनल। दिस क्वेश्चन इज इन दैट हियर यू हैव टू ड्रॉ अ डायग्राम बिकॉज उसने कहा है यू शुड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। आ जाते हैं जी, इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है यहाँ पे। ओके, कॉपर टू सल्फेट है, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स उसने डाल दिया। इलेक्ट्रोलिसिस के दो प्रिंसिपल्स हमने याद किए थे। एक प्रिंसिपल ये था कि इफ यू हैव अ रिएक्टिव एनोड इट आयनाइजेस, बात खत्म। आपका एनोड रिएक्टिव है, आयनाइज करेगा। दैट रूल विल नॉट अप्लाई हियर बिकॉज वी हैव ग्रेफाइट, इनर्ट होता है। सेकंड वाज लेस रिएक्टिव आयन डिस्चार्जेस। आपके पास आयंस क्या है? आपके पास कॉपर है और वाटर की वजह से H पॉजिटिव है, और सल्फेट है और OH नेगेटिव है। लेस रिएक्टिव क्या है? कॉपर। तो हमारे पास एक साइड पे इन आयंस को लिख लें यहाँ पे, कॉपर पॉजिटिव 2, हाइड्रोजन पॉजिटिव 1, हाइड्रोक्साइड नेगेटिव 1, सल्फेट नेगेटिव 2। So what is less reactive? In these two, this is the one that's less reactive. In these two, this is the one that's less reactive. कॉपर हमें कॉपर ही देगा ना, और कैथोड पे आएगा। तो व्हाट इज सीन? पिंक सॉलिड। कॉपर का कलर याद रख लें। कॉपर की कौन कौन सी चीजें के कलर याद होने चाहिए? आपको बताना चाहिए कि सॉलिड में पिंक होता है, कॉपर टू आयन वाटर में ब्लू होता है, और कॉपर टू ऑक्साइड ब्लैक होता है। कॉपर के ये तीन कलर्स हैं जो याद रहने, कॉपर टू ऑक्साइड ब्लैक, प्योर कॉपर मेटल पिंक, और कॉपर टू आयंस इन वाटर ब्लू। अच्छा जी, एनोड पे क्या होगा? एनोड पे OH आ रहा है। OH कहां से आता है? वाटर से। वाटर ब्रेक डाउन करे तो क्या देता है? ऑक्सीजन गैस या हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन यहाँ पे आ नहीं सकती है बिकॉज वो कॉपर आ रहा है, तो ऑक्सीजन ही आएगी। तो आपने लिख देना है कि कलरलेस बबल्स या एफरवेसेंस। अच्छा, यहाँ पे many students have this confusion that we cannot write effervescence. Why not? Effervescence क्या होता है? Effervescence is bubbles that are coming out of a liquid. हाँ, थोड़े rapidly आ रहे होते हैं। That's what effervescence is. जैसे आप fizzy drink को open करें तो rapidly bubbles आ रहे होते हैं। So you can write that here. कोई मसला नहीं है उसमें। But notice that they have just asked us for what is seen. तो हमने वही बताना है। We see a pink solid on the cathode and we see a colorless effervescence or colorless bubbles on the anode. अच्छा, अब वो कहता है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एट द एनोड। क्या चीज है? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का टेस्ट क्या है? लाइटेड स्प्लिंट लाइन, ग्लोइंग स्प्लिंट लाइन, और वो रीलाइट हो जाएगा। ग्लोइंग स्प्लिंट, रीलाइट्स। अच्छा जी, what happens to the color of solution during electrolysis? Solution में color आया कहाँ से? What was the source of the color? This copper 2 ion was the source. Blue color था इसका। ये तो जनाब उठ के copper solid बन गए हैं, pink में convert हो गए। So what are you left with? The colorless H positive ion. So that means the color will go from blue to pale blue to colorless. You will see that the color fades, and that's your description. The color fades. और इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह आप देंगे भाई, कॉपर 2 इज अ ट्रांसमेटल लाइन, उसके कलर्स होते हैं। सो एज मोर एंड मोर कॉपर 2 डिस्चार्जेस, लेस कलर रिमेन्स। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जी कॉपर 2 आयन जितना था अब पहले नहीं है, उसकी आप कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हैं, आप उसके मोल्स को कह सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ कॉपर 2 आयंस हैज लेस। ठीक है, तो उसकी वजह से कलर फेड हो जाएगा। आपने ये नहीं कहना कि वो कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो रिएक्शन पूरा होने से पहले ही उसे स्टॉप कर दे तो थोड़ा सा ब्लू कलर रहे। सो डोंट से दैट इट इज कलरलेस until obviously you have some hint from there. Just mention it goes, it becomes pale or it fades. All right. The electrolysis is repeated using copper electrodes in place of inert electrodes. अब क्या किया उसने? Now you are not getting inert electrodes. So now your anode is also going to take part in the reaction. So you still have copper 2 sulfate aqueous, which means water के वो सारे ions and all that है, लेकिन यहाँ पर इसके बढ़ के एक और चीज भी है।
the copper that you have as the anode, it will also ionize. Kyun? Because the anode has a positive charge. What happens when you give a positive charge to a metal? It becomes iron, right? And that's exactly what happens here. The copper that you have as the anode, it simply goes into the solution, becomes blue ion. दूसरी साइड पे क्या हो रहा है? दूसरी साइड वाले को कुछ फर्क नहीं पड़ा, वहां पे वही पिंक सॉलिड डिपॉजिट हो रहा है. लेकिन there is a major difference here. The more copper goes on the cathode, the more copper comes from the anode. So the amount of copper ions is replenished. उसको फर्क नहीं पड़ा. So color remains as it is. क्योंकि कॉपर 2 आयंस कहां से आ रहे हैं? वो जा कैथोड पे रहे हैं, लेकिन एनोड से आ भी तो रहे हैं. सो ओवरऑल देयर इज नो चेंज ऑफ कॉपर आयन, द कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन वो उतने का उतना ही है. तो जब वो उतना है तो उसका कलर फेड होगा ही नहीं. तो द कलर रिमेन्स ब्लू एज इट इज. लेकिन इसका एक और इफेक्ट है. आफ्टर अ व्हाइल यू विल सी द एनोड will obviously dissolve. So the mass of anode decreases. अच्छा, cathode पे क्या हो रहा है? Cathode पे you're getting more and more copper solid being deposited. So mass of cathode increases. So you have copper solid coming to the cathode, so mass increases and it decreases at the anode. So what's the explanation? We will say anode ionizes. ठीक है? So copper changes to copper ion, loss in mass. आप बता सकते हो, अगर इक्वेशन देनी है तो ठीक है, नहीं देनी तो भी ठीक है. और cathode gets deposits or coated with copper, so उसकी वजह से उसका mass increase कर जाता है. ठीक है? तो you should be very clear about the movement of ions here. You can also write it like this कि भाई copper ions from the anode, copper ionizes from the anode and deposits on the cathode. That way you can explain कि वो एक increase हो रहा है, दूसरा decrease हो रहा है. Next is saying suggest a practical use for electrolysis of copper 2 sulfate. We use it to coat things with copper and we also use it to purify copper. आपने किसी चीज की coating करनी है, electroplating करनी है, you can use this. Or you can use it to purify copper. So any of the two methods are good enough. All right, hydrogen peroxide reacts with iodide ions. Iodide ion is I with a -1, जिसका टेस्ट होता था सिल्वर के साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ, येलो प्रेसिपिटेट देता था. ये वो आयोडाइड आयन है. To produce water and iodine, ये हमारे सामने आ गया. Acid must also be added for the reaction. Is there anything in the equation that's telling me that acid is present? H positive ions. H positive ions, very good. Those H positive ions are coming from the acid. H2O2 से भी नहीं आ रहे, iodide से भी नहीं आ रहे. So that is what's telling me that the reaction cannot occur without having some acid in there. All right. State what is observed. क्या हो रहा है? आपके पास आयोडीन, कोई चीज है यहाँ पे जिसका कोई कलर, कोई बबल्स कुछ हो. आयोडीन ब्राउन होती है. ये सब कलरलेस है on the left side. That means you will see the color turns brown या the solution turns brown क्योंकि उसमें आयोडीन आ रही है. Explanation नहीं मांगी है उसने. They just ask you to state it. State means बस बता दें. Don't give a reason. So just say that the solution becomes brown or brown color appears, something like that. The rate of this reaction is investigated by removing samples of reaction mixture of equal volume at time interval. Equal volume क्यों करना जरूरी है? So that we can have a fair comparison. पहले कम कर दिया, बाद में ज्यादा कर दिया, एंड में बोला कि भाई बाद में तो स्लो हो गया रिएक्शन. Not a fair comparison. We cannot trust that value. So we need equal volumes at timed intervals ताकि वो करना मैनेज करना आसान हो. Each sample is added to an excess of powdered calcium carbonate in a flask to stop the reaction in the sample. Calcium carbonate we know is basic, and when it reacts with acid, it gives carbon dioxide gas. It does not react with anything else in the solution. हमारी इक्वेशन में आयोडाइड है, कैल्शियम कार्बोनेट उससे रिएक्ट नहीं करता, H2O2 है उससे रिएक्ट नहीं करता, सिर्फ एसिड से ही करता है. तो बेसिकली यहाँ पे वो करना क्या चाह रहा है? वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रिएक्शन में से कुछ निकालता है, कैल्शियम कार्बोनेट में ऐड करता है और देखता है
कि अच्छा H पॉजिटिव पड़ा तो नहीं हुआ, बिकॉज अगर H पॉजिटिव सारा यूज अप हो गया मतलब रिएक्शन हो गया, सही है। या ये भी हो सकता है कि आपके पास H पॉजिटिव जो है वो खत्म हो गया और ये चीज हमारे पास है। ऑलराइट, suggest why the reaction stops when sample is added to calcium carbonate। अच्छा जी, अब ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है हमारे पास आयोडाइड वाला, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो रिएक्शन रुक क्यों गया? रुक इसलिए गया है क्योंकि जो H पॉजिटिव था जिसके बगैर रिएक्शन हो नहीं रहा था, उसको कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस हो गए। So the reaction stops because H positive reacts with calcium carbonate and gets used up. जब reactants ही नहीं रहेगा तो reaction कैसे होगा? So that's what we have seen here, that as you add calcium carbonate, H positive gets used up by it, H positive reacts with it, and so the reaction cannot proceed. Suggest why calcium carbonate is powdered. Powdered things have higher surface area overall. The smaller the particles, the more exposed they are. When they are more exposed, they react faster because they collide faster. ठीक है, सो यहां पर उसने हमसे फुल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मांगी है, इट्स अ वन मार्क क्वेश्चन, सो विल सिंपली से दे आर powdered to increase the rate. State what is observed when a sample of the reaction is added to calcium carbonate. So क्या होगा? If there is H positive, it will react with calcium carbonate, right? So you will see bubbles, you will see effervescence, carbon dioxide gas आ रही है, लेकिन हम ये नहीं लिखेंगे कि carbon dioxide नजर आएगी, because the bubbles are colorless. So that's what we have to see, that's what we will observe. So we will observe effervescence, we will observe bubbles, we will also observe calcium carbonate dissolving. ठीक है, तो आप यही कह सकते हो कि solid dissolves या white solid dissolves या solid calcium carbonate dissolves, या आप लिख सकते हैं that effervescence are seen या bubbles of colorless gas or something like that. ये ग्राफ आ गया है, इस ग्राफ को हम देख लेते हैं। बेसिकली कोई भी पॉइंट्स होंगे, आई एम गोइंग टू जस्ट मेक सम रैंडम ग्राफ। लेट्स सपोज ऐसे करके ग्राफ आता है, ठीक है। अगेन आई एम नॉट यूजिंग द वैल्यूज गिवन, आई एम जस्ट मेकिंग अ रफ ग्राफ, और इस पे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऐसे करके कुछ पॉइंट्स हैं। अब यहाँ पे वो कहता है ड्रॉ सर्कल अराउंड द अनोमलस पॉइंट, सो द पॉइंट दैट डज नॉट फॉलो द ग्राफ द ट्रेंड दैट इज अनोमलस, सो विल सर्कल इट। जब आपने इन ग्राफ्स को बनाना है तब आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो फोर स्मॉल स्क्वायर्स है ना, आपका क्रॉस उनके बीच में आना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। यूज द पॉइंट्स टू ड्रॉ अ कर्व हमने बना ली। Use the graph to determine the volume needed for a sample taken at 250 seconds. So you will see कि अच्छा जी 250 seconds पर this is the value of time. तो what is the volume over there? So जो भी value आती है, obviously it's not exactly जो question में हमें बताई हुई है, but in this graph, if this was the graph, this would be the value ये आप लिख देंगे। Similarly वो कहते हैं determine the time at which sample is taken if 6 cm cube is needed. So 6 cm cube यहां से पता लग रही है, ठीक है। अब स्केल का ख्याल रखना है, there are 10 boxes for 5 spots, so इसका मतलब है ये 6 है, ये 6 नहीं है, ये 6 है। तो इसका मतलब है यहां पर हम देख लेंगे कि जी जब 6 पे टाइम होता है तो यहाँ पे कितना टाइम बनता है जब 6 वॉल्यूम होती है, whatever the value get becomes, हम वो लिख लेंगे। आगे वो कहते हैं डिस्क्राइब एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस इन योर स्लोप एट 50 सेकेंड एट 400 सेकेंड। डिफरेंस क्या है? रिएक्शन हमें पता है ऐसे स्लो हो रहा है, तो 50 पे और 400 पे स्लोप में बड़ा फर्क है। स्लोप इज स्मॉलर और लोअर एट 400, स्लोप इज हायर और इट हैज हायर स्लोप एट 50 सेकेंड। उसकी वजह क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इज फास्टर इन द बिगिनिंग। ये बात कहना काफी नहीं है। क्यों? इसकी वजह ये कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, आपने रीजन बतानी है। तो रेट क्यों कम हो रहा है? क्योंकि जो आपके पास चीजें हैं उनकी कंसंट्रेशन कम हो रही है। वो क्यों हो रही है? क्योंकि उनकी कोलिजन का रेट कम हो रहा है, ठीक है। सो यू विल टॉक अबाउट कंसंट्रेशन, यू विल टॉक अबाउट मोल्स, यू विल टॉक अबाउट particles colliding because the explanation is required. So you will refer to the collision theory. All right. Salts can be prepared in lab in various ways.
क्या मेथड्स हैं हमारे पास? सॉल्युबल सॉल्ट बनाना हो तो दो मेथड होते हैं. यू टेक मेटल एंड एसिड, लेकिन वो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के लिए नहीं चलता. और यू टेक बेस एंड एसिड. अब वो बेस कितनी तरह की हो सकती है? यू कैन हैव alkali, you can have oxide, you can have carbonate, you can have ammonia. So two main methods, acid plus metal or acid plus base. और उससे हमारे पास ये soluble salts बन जाते हैं. Insoluble salt के लिए तो एक ही दो तरीके हैं इनफैक्ट. One is acid plus metal again, depending on whether insoluble salt is made or not. And then the second is precipitation, where you take two soluble salts and you react them together to make one soluble and one insoluble. अच्छा, तो salt preparation एक portion है. उसके बाद उसको extract भी करना होता है. So that involves filtration. If you are getting an insoluble salt, you will dry the residue in folds of filter paper. If you're getting the soluble salt, then you will uh, heat it until saturation point. You will heat it until you have a sizable crystals appearing, and then you will slowly cool it so that crystals appear आराम से. और अगर वो आपको प्योर ड्राई सैंपल बोल दे तो ड्राई सैंपल के लिए आपने उसको हीट करना है जब तक आपके पास क्रिस्टल्स बन नहीं जाते, वाइट क्रिस्टल जब तक पूरा को बॉइल करते हैं. तो यहाँ पे देखते हैं ये कौन सा सॉल्ट बना रहे हैं. कॉपर 2 सल्फेट, वी नो इट्स अ सॉल्युबल सॉल्ट. ठीक है. और वो कहता है यूज एन इनसॉल्युबल कंपाउंड एंड डाइल्यूट एसिड. इसका मतलब है कि आपने कोई ऐसी चीज यूज करनी है जो कि इनसॉल्युबल हो, लेकिन कॉपर आप फिर भी नहीं यूज कर सकते. Why? Because even though copper is insoluble, it does not react with dilute acids. It does react with concentrated acid, but that's besides the point. We just have a dilute acid. कौन सा acid लेंगे? वो acid जो हमें sulfate दे. So we will take sulfuric acid. H2SO4. That's what we need. अच्छा. और insoluble चीज जो हमें copper दे, copper oxide ले लेंगे. Simple. अब reaction होगा कैसे? चूंकि वो इनसॉल्युबल है, वो रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं करता, हमें उसको हीट करना होगा. सो क्या करेंगे? हम कहेंगे जी ऐड कॉपर ऑक्साइड टू डाइल्यूट H2SO4. ये दोनों चीजें हमने बता दी हमें कौन कौन सी चाहिए. ठीक है. अब इसमें ये हमें बताना जरूरी है और हमेशा इसका एक मार्क होता है, दैट व्हाट थिंग यू नीड इन एक्सेस. Okay, so you are making soluble salt, right? So you will take soluble thing as limited reactant. So in this case, sulfuric acid and copper oxide, this will be in excess. So you will take add excess of copper to oxide. Why am I doing this? Because I want that copper 2 sulfate, which is soluble, should be the only soluble thing at the end. I want all the H2SO4 to be used up. So I need excess of copper 2 oxide. So हमने कर दिया जी. Believe it or not, we have gotten 3 marks already. अब उसके बाद आपने उसे बता देना है कि भाई इनको स्टर कर, इनको हीट कर, जो मर्जी कर, रिएक्शन करवा. So they have done the reaction. अगला स्टेप है कि आपने प्योर ड्राई सैंपल कैसे निकालना है. हमने बता दिया रिएक्शन कैसे होना. अगला स्टेप होगा फिल्टर. ठीक है, कर दिया. फिर क्या कहेंगे? अब फिल्टर किस लिए किया है? ताकि एक्स्ट्रा कॉपर ऑक्साइड निकल जाए. अगर कॉपर ऑक्साइड एक्स्ट्रा ना होता तो फिल्ट्रेशन वाज यूजलेस, wasn't really required, but the whole process would be doomed because H2SO4 will be in excess in that case. So it's important that you write excess copper oxide. Now you filter and then you heat the filtrate. It's important that you mention किसको heat करना है, residue को या filtrate को. We are getting soluble salt, filtrate को heat करेंगे to crystallization point, या आप इसको leave भी कह सकते हैं, leave it, क्योंकि हमें pure dry sample of salt चाहिए, तो हमें वो copper 2 sulfate salt मिल जाएगा. Next it's saying silver chloride. Silver chloride, we know that for halides, they're insoluble for silver, they're insoluble for lead. Silver chloride is a white solid. It is insoluble salt. तो इसको रिएक्ट करवाने के लिए we will use precipitation method, जो उसने हमें बताती है. तो हमें एक soluble चीज चाहिए
जिसमें सिल्वर हो और सॉल्युबल चीज चाहिए जिसमें क्लोराइड हो. सो व्हेन इन डाउट टेक स्नैप. सो स्नैप इज, we'll say add silver nitrate, क्योंकि snap nitrates are soluble, to, this is again it should be aqueous, या आप solution लिख दो, to any salt that any sorry soluble salt that gives us chloride, so NaCl. So NaCl, potassium chloride, कोई भी soluble salt ले लें. So sodium chloride aqueous में हमने add कर दिया. Done. यहाँ पर कोई भी एक्सेस में हो कुछ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें एंड पे सॉल्युबल चीज चाहिए ही नहीं, हमें इनसॉल्युबल चीज चाहिए. तो अगला स्टेप होगा दैट यू फिल्टर द रेजिड्यू, sorry, filter and dry the residue in folds of filter paper. Why? Because you are getting insoluble salt, it will be collected on top. अच्छा, एक और चीज, कभी भी रेजिड्यू को डायरेक्टली ड्राई नहीं करते, because there is a possibility that some salt particles are still trapped. So हमेशा उसको वॉश करते हैं, ठीक है. सो वॉश एंड ड्राई, जब भी ड्राई का लफ्ज आना है आपने पहले वॉश कर देना है उसको. सो रिमेंबर, वॉश एंड ड्राई इकट्ठा करेंगे. सो वॉश एंड ड्राई द रेजिड्यू इन फोल्ड्स ऑफ फिल्टर पेपर, और आपने सॉल्ट बनाना. Dilute acid was added until all the solid had dissolved. Okay. The solid dissolves and effervescence is observed. And the gas turns lime water milky. और क्या चाहिए हमें कंफर्म करने के लिए कि कार्बन डाइऑक्साइड है? So we say that carbonate ion present. To a portion of the solution, add dilute sulfuric acid और barium ion confirm किया. तो इसका मतलब क्या है? White precipitate. क्यों? Barium nitrate tells us the confirmation of sulfate ion. सल्फेट आयन का टेस्ट क्या है? बेरियम नाइट्रेट में ऐड कर दो. तो यहाँ पे वो उसका उल्टा कर रहा है, वो सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहा है, वो सल्फेट खुद इंट्रोड्यूस कर रहा है ताकि व्हाइट प्रेसिपिटेट बेरियम का बन जाए. तो अ पोर्शन ऐड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड अंटिल इन एक्सेस. ओके. सो कहता है इट मे कंटेन कैल्शियम आयन. इसका मतलब है व्हाइट प्रेसिपिटेट बना होगा व्हिच इज इनसॉल्युबल इन एक्सेस. नेक्स्ट इट सेज टू अ पोर्शन ऐड एक्वस अमोनिया. वो कंफर्म हो गया कैल्शियम आयन, इसका मतलब है नो रिएक्शन. Aqueous ammonia does not react with calcium ions, and that is because it does not form any complex with it. So हमें यहाँ पे पता चल गया कि कौन सा salt है. It was a good question, especially this barium वाला part, because it's not that traditional. ठीक है, usually we add barium nitrate to check sulfate. अब उसने उलट कर दिया.